A very pleasant morning to all the dear students of class 7. In this video we are going to discuss the next property in the cases of triangles. Okay, so as we were doing our chapter the triangle and its property, so we are focusing on the triangle and its special properties that it has. We have discussed the altitude and the median, and you have known the difference very well. After that we have discussed the exterior property of angle, exterior angle property. Okay, that states that the sum of the exterior angle on a side of a triangle is equal to the sum of the opposite interior angles, है ना. तो opposite interior angles के sum के equal था exterior angle का measurement. That was your exterior angle property on which the exercise 6.2 was based, and I have discussed that. Now today we are going to discuss another property for the triangle, that is your angle sum property of triangle. Okay, angle sum, angle सभी angles summation. Okay, angle sum property, as the name states, it states that the total measure of three angles of a triangle is 180 degree. It means जब आप triangle आपके पास है, you know that triangle is a three-sided figure. It has three angles. Then the sum of all the three angles will be always 180 degree. Okay, 180 degree is what? 180 degree is a straight angle. Okay, and some students have also asked me what is linear pair. So linear pair आपका linear pair, you know that I have told that when you have this, you have actually learned the linear pair in your 6th standard. Okay, जब आपके पास ये rays हैं and you have a ray like this and this is a point and you have a b line है आपके पास, है ना, और ये आपके पास c है. So you have here two rays, OB ray है, OA ray है, OC ray है, और इस ray पर आपके ये two angles हैं जो कि adjacent हैं. Adjacent means बिल्कुल बराबर में, side by side, है ना. इसमें कॉमन मतलब दोनों एंगल की एक कॉमन आर्म है. जब टू एंगल्स में इस तरह से एक कॉमन आर्म होती है, देन दीज टू एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म लीनियर पेयर. तब इनको लीनियर पेयर बोलते हैं. मतलब कि एंगल AOC और एंगल BOC आपका लीनियर पेयर है. एंगल AOC एंड एंगल BOC लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का मतलब ये है कि इन दोनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होगा. दैट इज कॉल्ड एज योर लीनियर पेयर. मतलब पेयर टू एंगल, टू एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो एडजेसेंट होते हैं जिनमें एक कॉमन रे होती है. दैट फॉर्म्स योर लीनियर पेयर, है ना. ये लीनियर पेयर होता है. सो कीपिंग इट असाइड, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थ्री एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होगा. दैट इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी. सो हेयर वी हैव एंगल A प्लस एंगल B plus angle C is equals to 180 degree. So now class 7 we can verify it by paper cutting and pasting method. So let us understand that with the book. Here you have, like, you will draw a triangle like this. Then what you can see here, आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसके बाद आपने इसको टीयर अप कर लिया. ये जो आप देख रहे हैं ये जस्ट टीयर किया, वहाँ से 1 की इस कॉर्नर से टीयर अप कर लिया, यहाँ से भी आपने इसको कट कर लिया, 3 से भी कट कर लिया. ठीक है, ये वाला कट करने के बाद फिर आपने इसको अरेंज किया इस तरीके से. इस तरीके से अरेंज करने के बाद यू विल सी दैट एंगल 1 आपका एंगल 1 ही रहा जो यहाँ पर ये है. एंगल 2 आपका उतनी ही मेजरमेंट का है यहाँ पर जो ट्रायंगल के अंदर है, क्योंकि आपने इस ट्रायंगल से ये एंगल कट किए हैं. एंगल 3 आपका इतनी ही मेजरमेंट का है यहाँ पर जितना यहाँ पर है. तो आप देखेंगे कि जब आप 1 2 3 को एक साथ अरेंज करने की कोशिश करेंगे, देन इट विल इवेंचुअली फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ये इवेंचुअली एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स फॉर्म करेगा लाइक दिस, एंड दिस इज योर स्ट्रेट एंगल, एंड बिकॉज दिस इज स्ट्रेट एंगल इट मीन्स इट इज़ 180 डिग्री. तो ये आपका 1 2 3 का समेशन 180 डिग्री यहाँ से प्रूव होता है. सो बेसिकली इट इज़ एन एक्टिविटी दैट कैन बी डन बाय पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मैथड. ओके, वी विल सी इट आफ्टर. After that you have this simple property of the triangle. You have after this you have exercise 6.3 based on this simple property that you have that the sum of the three angles of a triangle is 180 degree. It means actually you have learned the simple equations, है ना. आपको पता है कि एक वैल्यू होती है वेरिएबल की, एक इक्वेशन कैसे होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी भी एप्लीकेशन यहाँ पर है. मतलब क्या है कहने का, इन द क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. तो
आपने डायग्राम्स में से अननोन x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. सो यू हैव नोन दैट आपका ये एक ट्राइंगल है, इसके 3 एंगल्स हैं. एंगल ए x है, एंगल बी 50 डिग्री है, एंगल सी 60 डिग्री है. एंड यू नो दैट इन तीनों का समेशन 180 डिग्री है. ठीक है, अब तीनों का समेशन 180 डिग्री है. सो हाउ वी विल प्रोसीड. आई एम टेकिंग 2 पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ. यू कैन सी दैट हेयर in all the questions you have 3 angles. You have to just do likewise, okay, and find the value for x. So here you can see the exercise 6.3 question number 1. The first part, the diagram is like this, angle ABC. So what you will write and also you will give the reason. Okay, by angle sum property you are writing, by angle sum property what we have, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Okay, so what is angle A? X. Angle B is your 50 degree, putting the value 60 degree. We have this equation and we just put the value. Now you can see it implies x, आपका x रहेगा 50 plus 60 110 हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो अब आपको ये एक सिंपल इक्वेशन की तरह अपीयर हो रहा है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ प्लस में है 110, इक्वल्स टू के उधर ट्रांसपोज हो जाएगा. व्हाट यू विल गेट 180 माइनस 110, दैट इज x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. सो इट इज़ द आंसर. you have find that x is equals to 70 degree. Okay, now question number 1 fourth part में आप डायग्राम देख सकते हैं. Again you have in the fourth part they have not named the triangle, but आप अपने साइड से नेम कर सकते हैं A B C P Q R या जो भी आपको ठीक लगे. Then again by angle sum property, ये रीज़न आप ज़रूर देंगे एग्ज़ाम में भी और हर एक क्वेश्चन में भी. एंड यू विल राइट द क्वेश्चन, ड्रॉ द फिगर ऑल्सो ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. What you will have, you can say that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Angle A is your x, B is your 50 degree, then C is again x, and you have this 180 degree. You know that x plus x will be your 2x है ना, 2 times x मतलब 2x. Then you have plus 50 is equals to 180 degree. It implies 2x is equals to 180 degree minus 50 degree. ठीक है, आपको पता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है. 50 डिग्री उधर चला गया, वेरिएबल वाली वैल्यूज़ आप एक साइड रखेंगे, न्यूमेरिकल इक्वल्स टू के अदर साइड ले जाकर आप सॉल्व कर लेंगे. यू हैव 2x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. नाउ यू कैन सी दैट यू हैव टू फाइंड द x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के उधर जाकर आपका डिवीजन में चला जाएगा. यू विल डिवाइड इट, यू विल गेट 65 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. इट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, क्योंकि दोनों ही x हैं. ठीक है, देन सिमिलरली ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टी देयर इज बेस्ड द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 says find the values of the unknowns x and y in the following diagrams. तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल क्वेश्चंस थे, सिंपल ट्राइंगल्स थे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करना होगा. ठीक है, मतलब आप डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए. देन इट मे बी यू कैन यूज़ हेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आपको पता है. ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है और एंगल सम प्रॉपर्टी भी पता है. तो तीनों प्रॉपर्टी मतलब आपकी प्रीवियस नॉलेज का इन क्वेश्चंस में यूज़ है. सो वी विल जस्ट ऑब्जर्व द फिगर एंड वी विल सी कि हम x और y या अपने वेरिएबल जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखिए. बट यू विल सी हेयर, this is your triangle, this is a side that is extended, and on this side you can see here an exterior angle that is 120 degree, and you know that this is exterior angle, this is a triangle. Triangle में तो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी होगी, तो 50 plus x plus y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. बट यू कैन सी हेयर, और आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जब मैं अगर मैं ये लिखती हूँ
ठीक है। अगर मैं ये लिखती हूँ x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन की मदद से नहीं निकल सकती। ठीक है, जब भी आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें वेरिएबल एक ही होता है, या तो x ही होगा या y ही होगा। ठीक, तो इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। हमें क्या करना है, अब मैं एक्सटीरियर एंगल देख सकती हूँ एंड आई कैन सी दैट दिस 120 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस x, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल आपका इक्वल होगा टू द समेशन ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स, मतलब 50 और x के सम के इक्वल होगा आपका 120 डिग्री। सो दैट एक्सटीरियर एंगल आई विल प्रॉपर्टी आई विल यूज टू फाइंड x फाइंड करने के बाद मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से y फाइंड करूंगी। सो लेट अस सी दैट हाउ वी विल प्रोसीड। So first, because you have to use exterior angle, so you will say according to the figure, मीन्स हम फिगर को नेम नहीं कर रहे हैं, जस्ट फिगर को ही यूज़ करेंगे। जब आप फिगर का नेम भी नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक द फिगर इन द एग्जाम ऑल्सो एंड इन योर नोटबुक ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि आप फिगर को ही रेफर करके सॉल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर बाय एक्सटीरियर एंगल property of triangle. Okay, what you get, 120 degree is equals to, you know, exterior angle is equal to sum of opposite interior angle which is x plus 50 degree. ठीक है, सो यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि x के साथ 50 पॉजिटिव में था तो बेसिकली इक्वल्स टू के उधर साइड चला गया। मैंने इसको थोड़ा सा इधर लिख दिया, लेफ्ट राइट कर दिया है, लेकिन वैल्यूज़ एंड फॉर्म सेम है। ठीक है ना, सो यू विल गेट 70 डिग्री। ओके, सो योर x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब देखो मेरे पास x आ गया, ये है, अब मेरे पास y निकल जाएगा। नाउ by angle sum property, what you will have, this x plus y plus 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना था ना, और x आपका 70 डिग्री है, प्लस y plus 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई एम राइटिंग हेयर, ओके, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से आ गई और y की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाला है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। अब देखो y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ रहा है और देखो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आया। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये देखो, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, यू कैन सी दैट दिस इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। y और 120 डिग्री का समेशन 180 डिग्री है, इसलिए y 60 डिग्री आया है। 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इट इज़ अ लीनियर पेयर ऑल्सो, मतलब मैं यहाँ पर लीनियर पेयर भी यूज़ कर सकती थी, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी दैट यू हैव लर्नड दिस टाइम, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इज दिस। Now this is the figure for question number 2, second part. Okay, so I have named the triangle ABC and you can see here 80 degree, this is 50 degree, this is x and y. You have to find the value of x and y. So you can see that this point पर, इस point पर आपकी two lines intersect हो रही हैं, ये line और ये line intersect हो रही हैं। तो किसी point पर जब line intersect होंगी, you know very well that vertically opposite angles will be formed. Vertically opposite angle 80 degree के opposite है y and property होती है कि vertically opposite angles are equal. So what you will write according to figure, angle y is equals to 80 degree vertically opposite angles. Okay, now in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. ब्रैकेट में लिख सकते हैं by एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो यू नो एंगल ए आपने फाइंड किया है, ये y, ठीक है ना, मतलब y प्लस आपका b 50 डिग्री था, प्लस आपका ये x था, ये 180 डिग्री था, y आपने निकाल लिया है 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री
plus x is equals to 180 degree. So you have 130 degree plus x is equals to 180 degree. It implies x is equals to 180 degree minus 130 degree is equals to 50 degree. Okay, so x की वैल्यू आपकी 50 डिग्री है और y की वैल्यू आपकी 80 डिग्री है. दिस इज द solution. Okay, now question number 2, sixth part I am taking. ठीक, other parts you will do yourself. So this is the last part for the exercise 6.3 I am taking. Here also you have to find the value of x and y. So you can clearly see that यहाँ पर आपकी ये वाली लाइन, ये लाइन, टू लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये x है, तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, x. ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इसके साथ और ये x है, तो ये भी आपका क्या होगा, x. ठीक, और यहाँ पर ये y लिखा है और ये x है, लेकिन आपको पता है कि ये टू लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे. x इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, x. तो तीनों ही x बन रहे हैं. इट मीन्स हाउ विल यू राइट, यू विल से अकॉर्डिंग टू फिगर दिस एंगल बी ए सी आपने फाइंड किया है ना, बी ए सी, ये वाला फर्स्ट एंगल आपने फाइंड किया है. सो यू विल राइट एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सिमिलरली ये वाला एंगल आपने सेकंड फाइंड किया, मतलब ये कौन सा एंगल था, ए बी सी. सो यू विल हैव एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज योर vertically opposite angles. Then this x is equals to y, you know, so x is equals to y, that is your is equals to angle ACB angle है आपका, ये है ना. Again it is vertically opposite angles. Okay, so here now in triangle ABC, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जब भी मैं बोल रही हूँ तो मैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में ही बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब इनके बारे में. सो यू विल हैव एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एक्स का एडिशन 3 टाइम, तो मतलब आपका 3x आएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, दैट इज योर 60 डिग्री. इट मीन्स एंगल x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है और आपका y भी 60 डिग्री है. ओके, एंगल नहीं है, आप सिर्फ x और y पूछा है, तो यहाँ पर आप एंगल पुट मत कीजिए. सो x की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है, वैल्यू पूछिए क्योंकि, और y की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है. सो यू कैन सी दैट ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल. एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू क्लास 7, जब आपके तीनों एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल में, अभी आपने देखा कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, तो जब आपके तीनों एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल के, तो उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, और उस ट्राइंगल का स्पेशल नेम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो आपने पहले भी सुना है. एंड नाउ you have to learn about the special triangles. मतलब आपका नेक्स्ट सेक्शन में we will be discussing the 2 special triangles, that is equilateral triangle and isosceles triangle. Okay, so as in the starting I have told you that based on the sides पर बेस्ड आपके 3 तरह के ट्राइंगल्स थे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड तीनों एंगल इक्वल होते हैं. और तीनों एंगल क्योंकि इक्वल हैं, हेयर यू कैन सी, तीनों एंगल जब इक्वल थे ना, तो हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री था. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी उसकी हर एक एंगल, ईच एंगल उसका 60 डिग्री का ही होता है. मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस. ओके, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है और तीनों का सम 180 डिग्री होगा बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी. तो जब मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगी तो वो क्या आएगी, 60 डिग्री. इट मीन्स ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60. तो कहने का मतलब ये कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका ईच एंगल का मेजरमेंट विल बी 60 डिग्री. ओके, सो लेट अस डील विद द सेक्शन 6.6, दैट इज योर स्पेशल ट्रायंगल्स. सो फर्स्ट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल.
अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब अगर मैंने ये ABC बनाया है और मैंने इसको बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र करके बनाया है, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, तो जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसकी स्पेशल बात ये होती है कि इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये वाला साइन जब आप देखते हैं कि ये साइन पुट किया जाता है छोटा सा, तो ये शो करने के लिए होता है कि ये इक्वल है। अगर दो साइन पुट करें दो चीज़ों पर, तो वो आपस में शो हो रही होती हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन द कमिंग टॉपिक्स, ओके, आपको पता चल जाएगा धीरे स्लोली। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और मैंने अब भी आपको बताया कि तीनों एंगल भी कितने मेजरमेंट के होंगे, 60 डिग्री के। उसके हर एक एंगल की मेजरमेंट 60 डिग्री ही होती है। ये स्पेशलिटी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही होती है। सो वी कंक्लूड दैट ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ, ओके, एंड all angles are equal and are of 60 डिग्री, या 60 डिग्री मेजरमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। टू साइड्स मतलब यहाँ पर मैंने AB इक्वल बनाई है AC के। तो अगर कोई भी ट्राइंगल की आपको पता है 3 साइड्स होती हैं, तो कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं, देन वी विल से दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हेयर AB इज इक्वल्स टू AC, मतलब यहाँ पर आपका क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC। कोई भी 2 साइड्स इक्वल हैं, देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट 2 साइड्स हैव सेम लेंथ, ठीक है। और एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, एंड स्पेशल प्रॉपर्टी, दैट बेस एंगल्स अपोजिट टू, जिसका क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, अपोजिट टू इक्वल लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। तो बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल लेंथ आर इक्वल कहने का मतलब क्या है, ये लेंथ आपकी AB एक लेंथ है, AC एक लेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल है। AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, है ना। AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। अपोजिट मीन्स उसके सामने, ठीक। इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है। इट मीन्स एंगल B और एंगल C आर द अपोजिट एंगल्स टू द इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ जो AB और AC आपस में इक्वल है, उनके अपोजिट आपका एंगल C है, एंगल B है, और वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C ऑलवेज। ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसके वो वाले एंगल्स, दैट आर प्रेजेंट अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, वो इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन द क्वेश्चंस। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट इज योर, दिस इज अबाउट योर 2 ट्राइंगल्स। आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और वीडियो को और कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टूड करना है। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 6.7. After that we will have our exercise 6.4. So the section 6.7 says sum of the lengths of 2 sides of a triangle. So let us see that. So in this section we will understand this topic, that is sum of length of 2 sides of triangle with the help of by referring this triangle only. Okay, तो मैं ये एक triangle, एक sample triangle आपके लिए एक example ले रही हूँ। ये एक एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, अदरवाइज इट इज़ अ जनरल कंडीशन। और ये किसी भी ट्राइंगल के लिए, किसी भी मेजरमेंट के ट्राइंगल के लिए, अगर वो एक ट्राइंगल है तो, है ना, मतलब एक ट्राइंगल अगर फॉर्म्ड है वो, तो उसकी तीनों साइड्स की किसी भी मेजरमेंट के लिए ये हमेशा ट्रू होता है। व्हाट इज़ दैट, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, the sum of length of any 2 sides of a triangle is greater than third side, ठीक है। मतलब कि ये कि जब आप एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो किन्हीं भी एनी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। थर्ड साइड से बड़ा होता है तभी एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। अगर थर्ड साइड से बड़ा नहीं है एक्चुअली में, सो
आप ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी उसकी क्या है, बेसिक नीड क्या है, कब आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, तो आप एक ट्रायंगल तभी फॉर्म कर सकते हैं व्हेन द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक ट्रायंगल प्रैक्टिकली फॉर्म नहीं कर सकते। मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जब आप ट्रायंगल फॉर्मेशन सीखेंगे तो वहाँ पर आप फॉर्म नहीं कर सकते अगर आपका टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है तो, ठीक है। तो वो आप हायर स्टैंडर्ड में थोड़ा और बाद में सीखेंगे, अभी के लिए आपको ये जानना है, ठीक है। और ये आपको मेज़रमेंट से देखना है। सो यू कैन सी दैट दिस इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ए बी प्लस बी सी, मुझे किन्हीं भी टू साइड्स का सम लेना है ना, तो टू साइड मेरे पास थ्री साइड्स हैं इन टोटल, ए बी बी सी सी ए। तो मैं कोई भी टू साइड्स लूँगी, मेरे पास तीन कंडीशन बनेगी, मैं बारी बारी से टू साइड्स का पेयर लूँगी। सो यू कैन सी कि अगर मैंने ए बी और बी सी लिया, सो व्हाट आई विल हैव 3 + 5 दैट इज़ 8 एंड इट इज़ ग्रेटर देन ए सी, क्योंकि ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो मतलब कि 8 सेंटीमीटर आपका बड़ा है ए सी से। तो टू साइड का सम आपका थर्ड साइड से बड़ा आ गया, करेक्ट। देन यू कैन टेक बी सी प्लस सी ए। सो बी सी विल बी योर 5 सेंटीमीटर, सी ए विल बी योर 4 सेंटीमीटर, यू विल गेट 9 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर देन बी ए। मतलब बी सी सी ए, ये वाली साइड ली, ये वाली साइड ली, इससे बड़ा आ गया, ठीक है। अगेन व्हाट इज़ लेफ्ट, सी ए एंड ए बी, मतलब ए बी के साथ अब सी ए ले लीजिए, ठीक है। एक बार ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, तीनों, इससे अलग तो कोई पेयर नहीं बन सकता। ए बी के साथ सी ए आपने लिया, यू विल हैव 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर दैट इज़ योर 7 सेंटीमीटर, दैट इज़ ग्रेटर देन बी सी। थर्ड साइड जो आपकी बची थी, मतलब ए बी और सी ए लेने के बाद थर्ड साइड जो आपकी बची थी बी सी, उससे दोनों का सम ग्रेटर आ गया। सो इट इज़ द कंडीशन, इट इज़ द बेसिक कंडीशन टू फॉर्म अ ट्राइंगल दैट, एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ट्राइंगल कि अगर एक ट्राइंगल है तो उसकी सम, उसकी एनी टू साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के, ओके। ऑल्सो the next condition here is difference between the length of any two side of a triangle is smaller than the length of third side। मतलब कि अभी हम समेशन की बात कर रहे थे, है ना। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस किन्हीं भी टू साइड्स का हमेशा लेस होता है थर्ड साइड के। मतलब अगर आप ए बी और बी सी का डिफरेंस लें, ठीक है, ए बी और बी सी का, मतलब बी सी माइनस ए बी कीजिए तो 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर यू विल गेट 2 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा लेस है ए सी के, है ना। यहाँ पर आपका बी सी माइनस ए बी लेसर आ गया है, लेस देन है ए सी के, ठीक है। तो जब हम सम लेते हैं टू साइड्स का, वो ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के। अगर हम किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस लेते हैं तो वो थर्ड साइड से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन। नाउ बेस्ड ऑन दिस द special triangle that we have learned, and this now next we will move toward the exercise 6.4. So 6.4 in the question number 1, simply based on this concept that we have learned the sum of lengths of sides of triangle. So question number 1 says, is it possible to have a triangle with the following sides? तो वो पूछ रहे हैं कि इन साइड्स के क्या आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है दैट द सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर, इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो उससे हम चेक करके बताएंगे। सो वी विल सी, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आपको मेजरमेंट गिवन है। वी नो दैट टू फॉर्म अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर टू साइड्स का हम देखें, अगर मैं 2 + 5 देखूं तो 7 है, थर्ड साइड से ग्रेटर है। 3 + 5 देखूं तो 8 है, थर्ड साइड से ग्रेटर है। लेकिन मुझे सबके लिए चेक करना है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी मेरी बन सकती हैं, तीनों के लिए चेक करना है। और थर्ड पॉसिबिलिटी में मैं ये देख रही हूँ, बट 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज इक्वल टू थर्ड साइड। मतलब इक्वल आ गया थर्ड साइड के, ग्रेटर नहीं आया है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म
this triangle. Okay, so it is not possible to form this triangle. यही आपको करना है. आप जो आपका सेकेंड और थर्ड पार्ट है उसमें आपको हर एक एडिशन करके देखना है तीनों साइड्स का, तीनों पॉसिबिलिटीज़ का. मतलब 3 + 6 करना है, फिर 6 + 7 करना है, फिर 7 + 3 करना है सेकेंड पार्ट में. तो उसके बाद कोई भी कंडीशन में इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन ही होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is simple. Take any point O in the interior of a triangle PQR. जैसे यहाँ पर है PQR, O कोई भी पॉइंट इंटीरियर लिया, वो पूछ रहे हैं इज OP + OQ ग्रेटर देन PQ. ठीक है. OP और OQ, तो मुझे O को P के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा और O को Q के साथ भी ज्वाइन करना पड़ेगा. उसके बाद में ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके ही ये तीनों स्टेटमेंट सॉल्व करूंगी. तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में से. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर वे में ही सॉल्व होंगी. सो लेट अस सी दैट. सो आपके पास जो क्वेश्चन है आपको ये चेक करना है कि ऐसा है क्या. तो आप क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट लिखेंगे. ठीक है. मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है बट आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे. टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर, everything you will write, all the questions and all the figure of the exercise. It is very much compulsory for you. So this is the given figure and you can see that they are asking for OP OQ. तो मुझे OP को ज्वाइन करना होगा और OQ को भी ज्वाइन करना होगा. एंड सिमिलरली इन द अदर पार्ट्स दे आर आस्किंग अबाउट OR, तो मैं OR को भी ज्वाइन कर देती हूँ. तो ये ज्वाइन करने के बाद यू कैन सी दैट दिस इज़ अ ट्राइंगल 1, T1 मैंने इसका नेम दे दिया. तो यू कैन सी दैट OPQ इज़ अ ट्राइंगल. OPQ ट्राइंगल है. सिमिलरली आपका ये वाला सेकेंड ट्राइंगल है, दैट इज़ ORQ एक ट्राइंगल है. ये भी आपका थर्ड ट्राइंगल है. OPR आपका थर्ड ट्राइंगल है. तो आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ही यूज़ करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है. अब देखो OP, OQ और PQ कौन सी ट्राइंगल के पार्ट हैं? इसके पार्ट हैं, ये वाले ट्राइंगल के. OP, OQ, PQ है ना, इसके पार्ट है. सो वी नो, और हो क्या रहा है देखो, ये ट्राइंगल की एक साइड है OP और दूसरी साइड है OQ और तीसरी साइड है PQ और उन्होंने लिखा है OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ. सो इट इज़ येस. ओके, सो वी विल से दैट येस OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ because POQ is a triangle and in triangle POQ, ठीक है, यहाँ पर ना लिखें आप ये चाहे. इन ट्राइंगल POQ द सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी टू साइड्स लेते हैं हम, तो कोई भी टू साइड यहाँ पर गिवन है, OP और OQ टू साइड लिए हैं. टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है. तो वैसे ही आपका सेकंड है आपका OQOR इज ग्रेटर देन OQ + OR इज ग्रेटर देन QR. इट मीन्स OQ आपका ये रही, OR आपकी ये रही, ग्रेटर देन QR. तो सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी कि येस OR + OQ is greater than QR because in triangle QOR the sum of two sides will be greater than the third side. तो बिल्कुल सिमिलरली वे में होगा. तो आपको ट्राइंगल समझना है, ट्राइंगल की दो साइड्स को कौन सी साइड्स हैं वो, और उनका सम आपका थर्ड साइड से ग्रेटर है, ये बात आपको समझनी है. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2. सो यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2. Then moving toward the question number 3. Question number 3 में भी आपका, so class 7 you have to complete your work up to the question number 2 of exercise 6.4. Okay, the question number 3, 4, 5 from this exercise, question number exercise 6.4 से आपके जो क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5 and 6, these questions I will take in the next video, and in the next video we will learn about Pythagoras theorem and then complete our chapter. So till then complete your this work, and in case of doubt just let me know, and stay happy and stay safe at home. Thank you class 7 for watching the videos. Be regular at your studies. Thank you.